एक आंटी बोलती, अरे बी वर्ड मत बोल बेटा, ब्रा। तो कहते हैं कि कोई सुन लेगा तो बदतमीज। तो अंकल बोलते हैं, क्या कहते हैं कि ये प्राइवेट चीजें पब्लिक में बात करना, डिस्कस करना, शेमफुल जनरेशन। My view of agencies traditionally is negative. Just this persistent communication gap. I'm not a big fan of the traditional structure. The communication is so off. So there's always been a lot of back and forth, what we want, what they want. The budget itself is such a massive constraint. Too many cooks usually spoil the broth. Upcoming agencies ruin experiences. Agencies ना इस चीज को one off project लेके चलती हैं. The quality of work starts to go down. They're a little bit more transactional by nature. It's so impossible to bring your vision to life. It's not the best experience. Give me my money back, like seriously. Hi, I'm Yash. I'm Anant, And we are the co-founders of Curvy. So Curvy is a new age women innerwear and shapewear brand in India. So we actually saw a market gap, कि एक wide gap दिख रहा है मुझे, जहाँ पे there are Indian brands जो बहुत ज़्यादा मासी हैं, mass premium है, और Western brands which are very premium but very unaffordable. So we just saw a middle path which is very comfort and function based, and we're trying to create it for India, कि Indian women के लिए उनका खुद का एक brand. Curvy should be a household name, कि हर घर में अगर एक women exist करती हैं तो उसके पास Curvy होना चाहिए. So 5 साल बाद Curvy comfort के साथ resonate करेगा और वो हर घर में होगा. So yeah, I think इस कैटेगरी की प्रॉब्लम है ये कि ना विमेन इनरवेयर को ना ओपनली बात ही नहीं की जाती है. मतलब बचपन से बड़े सेलिब्रिटीज़ के हमने मेल इनरवेयर के तो बतेरे एड्स देखे हैं, बट पहनती तो विमेन भी इनरवेयर, ये तो एवरीडे एसेंशियल है. सो आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज इज फॉर अस एक्चुअली टू रीच आउट टू देम इन अ वेरी कॉन्वर्जेशनल टोन. ये कोई बहुत ही अतरंगी प्रोडक्ट नहीं है, आपकी रोज़ की ज़रूरत है. सो दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज दैट वी फेस, एंड आई थिंक वी आर समवेयर देयर. Hi, my name is Harsh. I am a writer, I direct, and I creatively consult for brands. Because I'm a crazy person. I like to tell stories, and one of the best ways of telling stories is telling them in a very concise way. तो छोटी कहानियाँ बताना बहुत पसंद है मुझे, तो उसके लिए I choose brands and the way जहाँ पे I can take this out. So my worst working experience happened recently only when I had presented the first cut of a film to a client. The client essentially showed me a corporate film and an AV film, and they were like कि इसके colors देखो, अपनी film के colors देखो, इसकी footage देखो, उसकी footage देखो. I was not able to explain it to that person. तो मैं जो भी बोल रहा हूँ, I have to do different kinds of treatment for that film again and again and again and again. So it's very annoying that the gap between these conversations is something that clients essentially run away from. Essentially, the clients who are very direct with their briefs, who like direct relationship with the creative, and we can execute things clearly. Hi, I'm Harsh. Hi. I'm a creative consultant. So I think हर्ष, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है that in women innerwear, I don't know why people are very hesitant to talk about it, right? तो हमें इस चीज़ को ना बहुत नॉर्मलाइज करना है कि अगर आप ब्रा बोल रहे हो तो कुछ गुनाह नहीं किया है. सो इस चीज़ को सोसाइटी में लेके जाना है कि everyone can talk about it. पहन तो सभी रहे ना, तो उसके अराउंड हमें कुछ कैंपेन आइडिएट करना. So I think my ideas are essentially aligned with जो आपने मुझे बताया अभी, because ये जो conversations जो टैबू है, जो conservation इन conversation के around, उसको हम अलग अलग तरीके से address करने वाले in the solutions that I have made for you guys. Perfect. The first idea, it's a little quirky, it's a little take on the society as we were talking about. Yeah. The idea essentially is called Breaking Taboos Live. It's a take on a live newsroom. So the treatment essentially starts with an anchor who talks, you know, in that zone how Malika Dua talks. एक बंदा है, वो अपनी बंडी और शॉर्ट्स में बैठा हुआ है, उसके पेट पे क्या कहते हैं चिप्स का पैकेट रखा हुआ है, ट्रांसपेरेंट वाला खा रहा है, मुंह पे लगे हुए हैं, ऐसे बंडी पे गिरे हुए हैं. ही स्विचेस ऑन द टीवी एंड टीवी पे इमीडिएटली लिखा आता है ब्रेकिंग न्यूज, खतरे में देश. 3 बार फ्लैश होता है एंड बिहाइंड दैट इज आवर एंकर. शी इज लुकिंग इन द कैमरा. नीचे टिकर चल रहा है जो बोल रहा था बी वर्ड वाज यूज्ड ओपनली इन कन्वर्सेशंस टू आंटीज फियर्ड ऑफेंडेड. कमिंग अप नेक्स्ट, वुमेन ब्रीदिंग फ्रीली, व्हाट टू डू, है ना. तो दैट पर्सन इज सिटिंग एंड शी इज लाइक ब्रेकिंग न्यूज, देश की संस्कारी नींदों को लगा फिर से झटका क्योंकि. शी टेक्स अ वेरी सैड डिफीटेड साइ. शी इज लाइक, एक लड़की ने पार्क में एक्सरसाइज करने के बाद अपनी दोस्त की कंफर्टेबल ब्रालेट देख के कर्वी से अपने लिए एक ऑर्डर कर दी, खुलेआम. शी शेक्स हर हेड. शी इज लाइक, आइए जानते हैं वहाँ का क्या हाल है.
So we cut to the on-ground correspondent. It's a lanky, tall guy in his specs, mic पे हाथ रखा हुआ है, and then he has the microphone in his hand. And proper देसी format में he is like shouting because there are aunties behind him जो gossip कर रही है. It's like, जी दीदी मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ जहाँ लड़की की ब्रालेट की बातें सुनकर पब्लिक में ऐसा बवाल मचा हुआ है जैसे अंतरिक्ष से आए हुए विमान का कोई पुर्जा मिल गया हो. क्या बात कर रही है? पीछे जाके he basically shoves the mic in auntie's face and she's like, एक आंटी बोलती, अरे बी वर्ड मत बोल बेटा. ब्रा तो कहते हैं कि कोई सुन लेगा तो बदतमीज. लेकिन ओवर टू यू दीदी इन द स्टूडियो. तो दीदी एसेंशियली रिएक्ट्स टू आंटी कोई सुन लेगा तो दीदी इज लाइक कि हाँ या कितनी नॉर्मल सी बात कर दी. एंड देन शी इज लाइक शी हिट्स हर हैंड्स ऑन द टेबल एंड शी गेट्स एग्रेसिव. लाइक हमारे साथ मौजूद है एक पुराने जमाने के ऑफेंडेड अंकल. स्क्रीन स्टार्ट्स टू स्प्लिट जहाँ पे अंकल आ जाते हैं पूरे मतलब वो नहीं होते जो क्या कहते हैं कोटी वगैरह पहन के अंकल जी बैठे हैं वो मंकी कैप लगा के अपना ओपिनियन देने के लिए. एंड एन अनअपोलोजेटिक जेनजी क्वीन. तो अगेन स्क्रीन स्प्लिट्स एंड ऑन द अदर हैंड यू हैव द जेनजी गर्ल. तो अंकल बोलते हैं क्या कहते हैं कि ये प्राइवेट चीजें पब्लिक में बात करना डिस्कस करना शेमफुल जनरेशन. तो लड़की होती बेसिकली जेनजी लाइक और तुम्हारे अंडरवेयर एड्स जो मैच के बीच में आते हैं वो नॉर्मल है. ग्रो अप अंकल. द एंकर विच इज सिटिंग इन द सेंटर शी क्लैप्स लाउडली लाइक आज की भाषा में बोलना चाहूंगी स्ले क्वीन. तो उतने में ही जो बंदा बैठा है हमारा, वी जूम आउट, वी गो इनटू द लिविंग रूम अगेन. दैट गाय हु इज सिटिंग देयर ही इज लाइक क्या कहते हैं यार ये क्या बातें चल रही टीवी पे. एज ही इज अबाउट टू स्विच द टीवी ऑफ, Malika essentially disappears and appears right in front of him. Bam, she's sitting in front of him and she's like, तुम अंडरवेयर सुखाते हो बालकनी में जैसे फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी हो रही हो और यहाँ हम बात कर रहे हैं तो ब्लास्फेमी हो गई करके. And the guy is essentially, you know, he just looks down, he nods on his chips कि मैं आँख तो नहीं मिला सकता because she has made a valid point करके. Cut to Malika inside the conference room जहाँ पे we have the Curvy hamper with the Curvy logo kept in front of her. She looks in the camera directly and she says, comfort को normal बनाओ, ड्रामा नहीं. एंड दैट इज वेयर वी एंड. सो दिस एसेंशियली टॉक्स अबाउट द कॉन्वर्सेशन लाइक यू नो आंटियां पीछे खड़े होके दे आर गॉसिपिंग कि तुम बी वर्ड क्यों बोल रहे हो. अंकल कौन होते हैं सामने वाले के इनरवेयर को जस्टिफाई करने के लिए जिनकी बंडी का स्ट्रैप खुद दिख रहा है. वो भी तो वही चीज हुई ना. तो मतलब ही हिमसेल्फ इज यू नो इन हिज जोन, इन हिज कंफर्ट जोन. तो ही कैन बी अलाउड टू बी द वे ही इज. और व्हाई इज इट नॉट नॉर्मल फॉर वुमेन इन जनरल? इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ टोन ऑफ सटायर दैट यू आर ट्राइंग. एग्जैक्टली. गॉट इट. एंड हम कितने ड्यूरेशन का ये पूरा? दिस इज अराउंड 45 seconds to a minute. डोंट यू थिंक ये टॉपिक पे थोड़ा मजाक भी हो जाएगा और इसका नेगेटिव भी कुछ हो सकता है? इसका मजाक बनाना जरूरी है. अगर हम इसका मजाक नहीं बनाएंगे तो बात कभी उठेगी नहीं. But we're targeting both males and females. Yeah, exactly. So we are trying to normalize the conversations amongst males and we are trying to raise the voices of the females sarcastically कि भाई तुम्हारे लिए नॉर्मल है तो मेरे लिए भी नॉर्मल है. Got it. The second idea is essentially called comfort is not gendered. तो यहाँ पे the film opens in a living room sequence जहाँ पे there's a girl, she's in her late 20s, she's doing yoga, she's wearing yoga pants and she's wearing a bralette, she's comfortable in her space. That is when the bell rings. Bell ring होती है, उसकी मम्मी अंदर आती है. मम्मी is also, you know, she's in her सलवार कमीज and she's wearing sport shoes. She has fruit का packet in her hand, basically coming from a walk or something. तो she enters and जैसे घर में घुसती बेटी को देखती एकदम से and बेटी is in the dress. तो suddenly her normalcy turns into whispers and frowning की बेटा घर में ऐसे कपड़े क्यों पहन के घूम रही हो? पापा है अंदर, क्या कर रही हो? चलो चेंज करके आओ. While she is saying this, the father walks out. फादर जो है वो वेस्ट पहने हुए हैं, ही इज वेयरिंग शॉर्ट्स, है ना. टोस्टर सही करते करते वो आते हैं और वो धीरे से नीचे बैठने लगते हैं और वो एड्रेस सुन लिया उन्होंने सारी बात को. तो वो बिना देखे सही करते करते सामने एड्रेस करते हैं. ही सेज चीज़ें कंफर्ट के हिसाब से पहनी जाती हैं और कंफर्ट पर सिर्फ आदमियों का हक थोड़ी है. तो डॉटर का जो मतलब टेंशन होता है, एम्बैरसमेंट होता है जो मम्मी ने भी दिया, दैट टर्न्स इनटू अ स्माइल. शी गोज एंड सिट्स नेक्स्ट टू द फादर एंड मम्मी वहाँ खड़ी हुई है. शी इज ऑब्जर्विंग व्हाट जस्ट हैपेंड. तो उनका भी जो confusion था और जो judgment था that fades away into thoughtfulness. That is when our screen wipe comes in on an overlay comes in which says comfort is not gendered, curvy. So I think Harsh, ग्रेट आइडियाज़. जो न्यूज़ एंकर वाला शूट है, जो कैंपेन है या जो आइडिया है, जैसे आपने बोला कि समवन लाइक मलिका, सो अगर उस लेवल पे हमें कोई क्रिएटर मिले तो डेफिनेटली वी कैन गो हेड विद दैट. सेकंड वाले में जो घर वाला सेटअप है, वी नीड टू थिंक मोर ऑन दैट. मतलब इसका मतलब फ्लिप साइड भी सोच रहा हूँ कि क्या लड़कियाँ भी इतना एक्सेप्ट करेंगी एकदम से कि पापा के साथ आई वांट टू सेट विद वेयरिंग अ ब्रालेट और समथिंग. इट कैन बी वेरी टियर 1 थिंग आल्सो ना, कि क्या पता वो टियर 1 के लिए बहुत वैलिड है बट टियर 2 टियर 3 के लिए क्या वो उतना ही वैलिड है. एंड आई थिंक जो आपका स्टैंड अप कॉमेडी वाला है उसकी आई लाइक इट पर्सनली. काफ़ी हम लोग के लिए रिलेटेबिलिटी है. स्टैंड अप हम सभी देखते हैं. क्या वो सरकाज़म एट स्केल, और अगर मैं इंडिया की बात करूं क्या सब समझेंगे, वो हमें उसे
ट्विस्ट वैसा करना होगा. ईमेल कॉमिक का एंगल वैसे भी आई रियली फील कि इट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस ऑल्सो. वो एंगल भी बहुत सही है. या आई मीन डेफिनेटली हर्ष के सारे जो हमारा ब्रीफ था कि हमें कम्युनिकेशन को नॉर्मलाइज करना है, इन्हें 3 अलग अलग तरीकों से दिखा दिया. बट वुड लव टू वर्क विद यू. ग्रेट मीटिंग यू हर्ष. वील गेट बैक टू यू सून. आई विल कॉल यू. बजट कितना देंगे डिस्कस कर लें.